Hello guys, good morning. Today we see the next topic in this five kingdom system of classification. We know the first kingdom is the Monera, now the second kingdom is the Protista. We already discussed about the general characteristic features of Protista in our previous lecture, as well as the first Protist like a kingdom Plantae or first Protist like a Plantae, that also we discussed in the previous lecture. Now here again the four different forms of the Protist are there. Those they are actually like animals, like a dinoflagellates, like a fungi and like a euglenites. Means they relate with that of a different forms of the animals and plants are there. Means the living life are there. As according to them they change their characteristic features, and as per that they change their characteristic features, they mix the different forms of the groups called as the plant-like groups, animal-like groups, dinoflagellate-like, fungi-like and euglenites. So we see the second one is called as the animal-like groups are there. In that the animal-like groups of Protista, there is actually the living beings or organisms that we call the Protists, but like that of a animal, they follow the characteristic features to like that of a animal is there. So called here they also called as the protozoans. ये सब एनिमल लाइक जितने भी प्रोटिस्ट है इनको अपन प्रोटोजोआ ऐसा कहते हैं. इट वन इज द लोवेस्ट ग्रुप ऑफ द किंगडम एनिमलिया इज देयर. एनिमलिया के अंदर में सबसे छोटा वाला जो पहला वाला किंगडम है वो प्रोटोजोआ है. तो उसमें ये आते हैं सभी कौन से ग्रुप में? प्रोटोजोआ. हायरार्की लेवल सब क्लासिफिकेशन में एनिमल किंगडम के अंदर में ये सब किंगडम वाला पहला ग्रुप है वो प्रोटोजोआ. देन द सेल्स ऑफ दैट द ऑर्गेनिजम्स they lacks the cell wall. ऐसे you know in animal cell there is absence of cell wall is there, you know very well. So as according to this one means like animal this organisms lacks the cell wall. इन लोगों में भी cell wall नहीं होती है. मतलब ये actually है प्रोटिस्ट, बस animal like character है. तो animal का कौन सा character है इसमें? cell wall उनमें नहीं होती, तो इनमें भी cell wall नहीं होती. So we called here lacks of cell wall are there. Then these are actually called as a primitive animals. Primitive means first come animals are there. As we know in the evolutionary sequence, first of all the bacterial cells like prokaryotes, they arise in the aquatic conditions, then onto the land conditions, then they develop into plantlets or plants are there, and then they develop into animals. Now in that the way this one is the first come animals are there, so it is called as a primitive animals. इसलिए इनको प्रिमिटिव एनिमल भी कहा जाता है. Then pseudopodia like organs. Now in here you know in the amoeba there is some irregular outgrowths to that the cells are there, as they are actually the unicellular animal and having certain irregular structures are there. That irregular structure onto the cell is known as the pseudopodia. Now this pseudopodia is acts as a locomotory organ in them. इन लोगों में क्या होता है कि जैसे अमीबा बेस्ट एग्जांपल लिया है उसमें प्रोटिस्टा के अंदर में प्रोटिस्ट लाइक एनिमलिया एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में, तो अमीबा में जैसे होता है आप लोगों को मालूम है कि अमीबा का शेप जो है इरेगुलर शेप होता है. तो इरेगुलर में जो भी आउटग्रोथ निकलते हैं सेल मेम्ब्रेन से उसको अपन सूडोपोडिया कहते हैं. तो ये सूडोपोडिया है जो कि उसके लोकोमोशन के लिए काम आते हैं. सो वी कॉल्ड हियर द सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच डेवलप्स इन दैट ऑर्गेनिजम्स. दे प्ले ए मेजर रोल इन द locomotion or locomotory organ. Then in it some of the examples are there having different frameworks or different characters are there. As per this one, the first one is the amoeba, that are actually the free living organisms are there. कैसे organisms? ये free living organisms है, कहीं भी aquatic condition में आप लोगों को ये पाए जाते हैं. That is actually called as the free living organisms. दूसरा जो एग्जाम्पल लिया है इसमें एंटोमीबा, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका ऐसा कहते हैं अपन, जो कि एंडोपैरासाइट है. एंडोपैरासाइट मतलब दूसरे की बॉडी के ऊपर या दूसरे की बॉडी के अंदर में जीने वाला. आप लोगों को मालूम है ये जैसे एंटोमीबा हिस्टोलिटिका वाला पैरासिटिक है एंडोपैरासिटिक, तो ये आप लोगों को डिसेंट्री डिसीज कॉज करता है. डिसेंट्री होती है इससे अपने को. तो ये वाला एंडोपैरासाइट मतलब पेट में जाके गट में जाके आपके ग्रो होते हैं ये, तो डिसेंट्री कॉज करते हैं. देन ट्रिपैनोसोमा करते ये एक अलग तरीके का मतलब इसी का एनिमल लाइक एग्जांपल्स है उसका प्रोटिस्ट का. तो ये है आप लोगों को एक डिसीज अलग तरीका, स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं इसको. ऐसा लगता है कि सो के ही रहना उठे तो थोड़ी चक्कर आना वगैरह ऐसे कुछ
डिसीज के सिम्टम्स होते हैं, इसको स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं अपन। तो ये भी ट्रिपोनेमा है, ये भी पैरासिटिक है, एक्चुअली दूसरे की बॉडी के ऊपर डिसीज कॉज करने वाला है। देन पैरामीशियम है, पैरामीशियम इज एक्चुअली ए सिलिएटेड बॉडी, मतलब इसके बाहर आप लोगों को मालूम है इसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे स्लीपर शेप होता है, तो उसके ऊपर वैसे बारीक बारीक हेयरी आउटग्रोथ होते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, एक्चुअली सिलिया कहते हैं। तो इसकी बॉडी कैसे एक्चुअली सिलिएटेड बॉडी है। दैट वन इज मेनली प्ले ए रोल इन द डेवलपिंग स्वीपिंग करंट फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए स्वीपिंग करंट डेवलप करते हैं। देन प्लास्मोडियम है, प्लास्मोडियम इज एक्चुअली द स्पोरोजोन्स which one is belongs to the protozoa that cause malaria to the human beings and other mammals। इन लोगों को ये मलेरिया वाला डिसीज कॉज करने वाले प्लास्मोडियम, these are also the endoparasites are there। ये सभी आप लोगों को एनिमल लाइक प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं। दिस वन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द एनिमल लाइक प्रोटीन्स आर देयर। द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ दिस प्रोटिस्ट इज द डायनोफ्लैजेलेट्स। दूसरा जो ग्रुप है वो है डायनोफ्लैजेलेट्स है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द डायनोफ्लैजेलेट्स? Now as per this one we know the sequence of character is in one way is there। एक कैरेक्टर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे एक कॉमन सीक्वेंस रखो ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि लिखते समय भी कोई दिक्कत ना है। जैसे मैंने पहले इसको कौन से ग्रुप का है वो लिया था, कहाँ रहते हैं वो लिया था, तो इसी हिसाब से बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, वो सब चीजें आप लोगों को इसमें आ जाएंगी। वो जनरल कैरेक्टर जब जो भी अपन ने पढ़े थे प्रोटिस्टा में, वो सभी कैरेक्टर इसको फॉलो होते हैं। इसके अलावा इनके ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है, तो अपन इसलिए इनको अलग से ग्रुप करके लिख रहे हैं। तो डायनोफ्लैजेलेट्स है, ये डायनोफ्लैजेलेट्स में ये जो रहते हैं एक्वेटिक मराइन एनिमल्स है। ये कौन से है? एक्वेटिक मराइन प्रोटिस्ट कह सकते हैं अपन, एक्वेटिक मराइन प्रोटिस्ट है ये। एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले, मराइन का मतलब है खारे पानी में, समुद्र के पानी में रहने वाले, वहां पे पाए जाते हैं। Now this one is having the photosynthetic pigments are there। We write here the photosynthetic pigments having different colors yellow, green and orange। So they play a major role in the process of photosynthesis। Means they are actually the autotrophs। कैसा है ये? मॉड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक नेचर के है। Now we see the structure of cell is there। Now cell wall is present। Cell wall is present, but the cellulosic cell wall is present like that of a plant। Plant में जैसे cellulosic होती है मगर उसमें स्मूथ होती है, तो यहाँ पे स्टिफ सेल वॉल होती है, थोड़ी हार्ड होती है, कड़क होती है, तो इसको बोलते हैं स्टिफ सेल वॉल, इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट है इसके एग्जाम्पल के अंदर गोनियालुक्स नाम का एक ऑर्गेनिजम्स है। गोनियालुक्स ये है रेड टाइड, मतलब जहां भी जहां समुद्र में वो ग्रो होता है, इसमें ऐसा लगता है कि पूरा समुद्र रेड हो गया है अपने को। इसकी संख्या अगर बढ़ जाती है तो इसलिए इसको बोलते हैं रेड टाइड। रेड टाइड ऐसा का दिखाई देता है आप लोगों को जब भी they are multiplied in the aquatic conditions, in marine water means in oceanic conditions they makes a red color water in that the oceans are there, so the sea appears like a red color। इसलिए समुद्र आपको कैसा दिखता है? रेड कलर वाला दिखाई देता है। This one is the characteristic features of the dinoflagellates। आप देख रहे हैं इसका कैरेक्टर कभी इधर नहीं देख रहे आप लोग, इसका इधर नहीं देखा था, इसलिए कोई अलग, सब में अलग अलग कैरेक्टर है, इसलिए ग्रुप बन गए सभी के अलग अलग, मगर ऑल दे आर बिलोंग्स टू द किंगडम प्रोटिस्टा। देन फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है। In fungi like protists there is a group of the fungi are there, ascomycetes, basidiomycetes, myxomycetes, ऐसे फंजाई का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसमें से ये सभी जो प्रोटिस्ट है ये myxomycetes फंजाई में आते हैं। कौन से फंजाई में आते हैं? फंजाई के ग्रुप में myxomycetes नाम का क्लासिफिकेशन है फंजाई का, इसके 5 क्लासेस है, उसके हिसाब से ये myxomycetes वन ऑफ देम। तो इसमें सभी आते हैं ये प्रोटिस्ट, मतलब इसके कैरेक्टर को फॉलो करते हैं वो। Now they are actually the saprophytes। We know already the characteristic features of fungi are actually the saprophytes। They grow onto the dead remains of the bodies are there। मृत पदार्थों के ऊपर जीने वाले हैं सभी ये, आप लोगों को पता है, इनको अपन saprophytes कहते हैं। तो ये भी प्रोटिस्ट वैसे ही जैसे कि fungi किस तरीके वो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसका saprophytic नेचर, वैसा ही इनका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। Now सेल का स्ट्रक्चर है, तो सेल कैसे इसके एग्रीगेटेड है, एक सेल दूसरे को लगा हुआ है, सो वी कॉल्ड इट द सेल एग्रीगेशंस आर देयर टू फॉर्म ए सेल मास। सेल जैसे एक में के साथ चिपक जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सेल मास, एंड दैट सेल मास इज नोन एज द प्लाज्मोडियम। दिस प्लाज्मोडियम इज नॉट द प्लाज्मोडियम दैट कॉज द डिसीज मलेरिया। मलेरिया कॉज करने वाला ये प्लाज्मोडियम नहीं है, आप ध्यान रखना है। ओनली इट इज द सेल एग्रीगेशंस ऑफ द fungi like protist, fungi like protist, उसका सेल एग्रीगेशन, उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। Now as they mix plasmodium means the group of the cells that is called as the cell mass also, they develops the spores।
they develop the spores. Spores means one of the stage of the asexual reproduction that is called as sporulation or spore formation. वो अपने आप में स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी संख्या को बढ़ा देते हैं. दिस इज एक्चुअली द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के केस में आता है ये. तो ये स्पोर प्रोड्यूसिंग फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है. नाउ दे सर्वाइव वेरी हार्श कंडीशंस, मतलब इसकी जो सर्वाइविंग एबिलिटी है ये वेरी डिफिकल्ट कंडीशन में भी वो सर्वाइव होते हैं. इसलिए लिखा है कि सर्वाइव वेरी हार्श कंडीशंस. अब कितनी भी ऐसी दिक्कत वाली कंडीशन आ जाए, एटमॉस्फेरिक चेंजेस कैसा भी हो जाए, मगर उसमें वो सर्वाइव होते, ऐसी इनकी एबिलिटी है. आप लोगों को पता है कि लिविंग लाइफ में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे ही कभी एटमॉस्फेरिक कंडीशन बदलती है, इफ दे आर नॉट एडजस्टेड इन दैट द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, दे बिकम डाइज और पेरिश, वो खत्म हो जाते हैं. पर ऐसा इसमें नहीं होता है, वो उसमें भी अपना जीवन जीने की क्षमता रखते हैं. लास्ट वाला अपना है यूग्लिनोइड्स. यूग्लिनोइड्स पे भी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना अपन हमेशा पढ़ते हैं, पैरामीशियम के साथ में यूग्लिना पढ़ते हैं. जैसे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, डायग्राम दिया हुआ है ऐसा छोटा छोटा, ऐसा एक डायग्राम होता है, ऐसे एक फ्लैजेला वगैरह निकला होता है, बाकी सब ऑर्गेनेल्स इसके अंदर में होते हैं. मैं यहाँ से डायग्राम नहीं निकालूंगा और ज़्यादा समय भी नहीं लूंगा. ओनली वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द यूग्लिनोइड्स आर देयर. नाउ यूग्लिनोइड्स लाइक दैट ऑफ प्रोटिस्ट are the lack of cell wall, because it one is the animal like characters are there, so there is absence of cell wall. इनमें सेल वॉल नहीं होता क्योंकि यूग्लिनाइड या यूग्लिना कैसा है, वो एक्चुअली एनिमल है. तो एनिमल में सेल वॉल है क्या? नहीं है. एनिमल में सेल वॉल नहीं है तो ये कैरेक्टर्स में यूग्लिनाइड लाइक प्रोटिस्ट में आ जाए तो सेल लैकिंग ऑफ सेल वॉल, मतलब द सेल वॉल इज एब्सेंट, ऐसा भी कह सकते हैं. नाउ टफ कवरिंग्स ऑफ द प्रोटीनिशियस पेलिकल्स. अगर सेल वॉल नहीं है तो बाहर क्या होना चाहिए? एक टफ कवरिंग है. टफ कवरिंग किसके लिए? अंदर के सब मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए. ये भी सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. तो इसमें टफ कवरिंग ऑफ प्रोटीनिशियस पेलिकल्स, ये प्रोटीन्स का कवरिंग है जिसको अपन पेलिकल्स कहते हैं. तो ऐसा एक टफ कवरिंग है फॉर अ प्रोटेक्शन ऑफ दैट द सेल इज देयर. Then heterotrophs are there. Obviously they feed on to the others, so called as the heterotrophs. ये heterotrophic nature के, क्योंकि यूग्लिना एनिमल के अंदर आता है और एनिमल से भी हेटेरोट्रॉपिक है, तो ऑब्वियसली ये भी हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर के. Now they possesses a pigments like that of a higher plants are there. जो बड़े वाले प्लांट होते हैं, एक में एनिमल है जो फोटोसिंथेसिस करता है, आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में. ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन है ये, या 1 मार्क क्वेश्चन में भी आता है. They possesses pigments similar to that of a higher plant. जैसे हायर प्लांट में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, ऐसे ही इस यूग्लिनोइड्स के अंदर भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं. सो दे प्ले ए मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो कॉल्ड एज एन ऑटोट्रॉपिक इन नेचर. मतलब इन्हें दोनों कंडीशन है, हेटेरोट्रॉपिक भी है और ऑटोट्रॉपिक कंडीशन भी है. ऐसे दोनों कंडीशन, दोनों कैरेक्टर, दोनों टाइप के कैरेक्टर ये ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं. वी नो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर कॉमन इन हियर द प्रोटिस्ट. प्रोटिस्ट में भी ऐसे कैरेक्टर अपन देखे थे जनरल ग्रुप में, वही कैरेक्टर इसमें भी फॉलो करते हैं. बट एज पर द डिफरेंशिएशन और डिफरेंट कैरेक्टर्स टू दैट ऑफ ए रिलेट्स टू दैट ऑफ ए डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द लिविंग बीइंग्स, वी क्लासिफाई दैट द किंगडम प्रोटिस्टा इनटू 5 like that of a protist like plant, protist like animals, dinoflagellates, fungi and euglenoid. Okay, we complete here the second kingdom Protista. Tomorrow we see the third kingdom, that is the kingdom fungi. Okay, thank you.